Okay, so this is about valuation of bonds and debentures. I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we know the meaning of bond and debentures. This is basically a fixed income instrument that represents a loan made by an investor to a borrower, typically corporate or government. So what we are doing basically here is whenever we make an investment in any kind of bonds and debentures, how we can actually ascertain that what should be the price of that particular bond or debenture. So for example, I want to invest and there is some price which is quoted by the company. Okay, I want to invest in one corporate bonds and they have already quoted one price. Now I have to make a decision whether this price which is now being like offered by the company, it is, you know, it is accurate or not. So how I can basically compare, how basically I can value the bonds or debentures. So this is very very easy. So calculation of purchase price. So purchase price हम calculate कर रहे हैं. Purchase price means the present value, that मैं कितने का purchase करूं उसको. ठीक है. So मुझे आज की date में today value मुझे चाहिए. So उसके लिए we have to use the present value formula. ठीक है. Purchase price है. उसके लिए this is the formula. What is this formula? This particular C is basically the redemption price. Okay. So for example, I am investing in a corporate bond which is going to mature say in 10 years. Okay. So 10 years के बाद जो भी उसकी redemption value होगी उसको मुझे discount करना पड़ेगा present date पे. Right. So उसकी मुझे present value निकालनी पड़ेगी. So this is the one in which we will use just PVF formula, right? You know, na, there are four kind of tables. Sorry, there are two tables for present value and two tables for future values. So present value में एक होता है annuity और एक होता है आपका simple. जो सिंपल वाला होता है उसका मतलब ये होता है कि आप एक वैल्यू को बस डिस्काउंट कर रहे हो, वो एनुइटी नहीं है, वो रिपीट नहीं हो रही है सेम वैल्यू. इट इज जस्ट वन वैल्यू यू वांट टू डिस्काउंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इट्स प्रेजेंट वैल्यू. तो जो ये रिडेम्पशन प्राइस है, दिस इज जस्ट वन वैल्यू विच यू विल गेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड. सो उसको आपको सिर्फ एक बार ही डिस्काउंट करना है. सो उसके लिए वी विल फोकस ऑन द पीवीएफ टेबल्स. The other one R is basically the annuity. now bond में इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है. वो इंटरेस्ट it could be quarterly, it could be semi annually, it could be annually. So interest जो होगा that will be a repeat figure, right? It will be, you will be receiving it at a regular intervals. So that is basically an annuity. सो उस एन्युटी को आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है. मतलब फॉर एग्जांपल ईयरली बॉन्ड था आपका, ईयरली इंटरेस्ट था 10 इयर्स के लिए. सो 10 इयर्स तक आपको वो इंटरेस्ट मिला है. अब वो पूरा का पूरा वैल्यू आपको एकदम से प्रेजेंट में कैलकुलेट करना है. सो उसके लिए वी विल यूज पीवीएएफ टेबल्स. ठीक है. क्योंकि वो रिकरिंग बेसिस पे हो रहा है और वैल्यू इज सेम, इंटरेस्ट इज सेम. क्योंकि इंटरेस्ट आप लोगों को पता है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू. So it is not going to change. So interest value remains same and this will take in the form of an annuity, or annuity ki present value you know how to calculate. So basically we will use this formula. Okay, redemption value या redemption price multiply with PVF tables देखेंगे हम, जो भी interest rate होगा number of years प्लस आपका annuity value, उसको हम multiply करेंगे PVF value से with same interest rate with same number of years. Okay, it's very simple. Matlab just think about the bond, just think about the the payments which you are going to receive. So you will receive the interest payments as well as you will get the redemption value, that the maturity value. So maturity सिर्फ एक बार ही मिलेगी इसलिए PVF यूज करेंगे, interest बार बार मिलेगा इसलिए हम PVF tables यूज करेंगे. Is this clear? Yes. Yes, ma'am. Okay. So this is the first question. A bond has a face value of rupees 1000 and mature in 15 years. The nominal interest is 7%. What is the price of the bond that will yield an effective interest of 8%? Okay. So let me just show you how we can
solve this. Okay, so in this case, the face value is 1000. Okay, the face value is 1000 and nothing has been mentioned about the redemption value. So we will assume that the redemption value will also same. Otherwise, in most of the question it is mentioned that it may be mature with a premium of 10% or it may be mature with a discount of 10%. So you guys know about premium and discount, right? You will add or subtract it accordingly. So abhi it is not mentioned, so I am assuming the redemption value has to be same as face value. मैं इसका क्या कैलकुलेट कर रही हूँ, प्राइस अभी, ठीक है, किसका प्राइस क्या होगा, mature, so n is basically your 15 years. Nominal interest rate, nominal interest rate basically क्या होता है कि आपको कितनी interest payment मिलेगी उस bond से. So interest is always in the form of annuity, right? So it is A. So 1000 into 7%. So 70 is the interest amount which you will get every year. They have not mentioned the frequency, so I am assuming as to be the year. Then effective interest rate. So effective is basically your R, is 8%. And I have to calculate the value of bond. Value of bond is C. So C is your redemption value, which is 1000 into PVF. I is 8%, N is 15, plus annuity is 70 into PVF 8%, 15 years. Okay, simple formula. Now we have to go to our tables. So I'll just find the link for table, just a minute. Table link. 0.3152. एक मिनट में दिखा भी दूं टेबल, हाँ मिल गया ना. I don't know if it will open or not. I think it has opened. खुल गया. Yes, so let's do it. First हमें देखना है PVF table. Okay, so this is future value, so we have to future value tables we have to ignore. So this is present value, this is just PVF tables. I है, this is one and the same only, ठीक है. So इसमें आपका 8% is this and 15 is this, right? It is 0.3152. So this value is 0.3152. Now we have to look for the PVAF tables. So for PVAF, 8% for 15 years. This one. I hope it is clear. So we'll replace this with that. So this is the value. So it means if the purchase price for that particular bond is offered as 914.365 or less, we should purchase it. But if it is higher than that amount, then it is not a good decision. We should not purchase that particular bond. Okay, so this is how you can basically evaluate that whether the price which is being charged by the company is right or not. Is it clear? Yes. Anyone having any doubt? Ma'am, could you please repeat the last part? आपने भी क्या बोला था?
बेटा ये हम या ये बेसिकली वैल्यू है which is the price, which is the purchase price. So if the company is say offering, okay, the corporate bonds that they are issuing, the corporate bonds, and for example they are issuing it at a price of 914.365 rupees or less, then it is a prudent decision. We should buy it because we know that as per the formula, its purchase price should be 914, approximately 914 rupees. ठीक है, अगर कंपनी इससे ज्यादा चार्ज कर रही है, सो इट इज नॉट अ गुड डिसीजन, वी शुड नॉट बाय इट, राइट? क्योंकि इसकी परचेज प्राइस इतना होना चाहिए, अगर वो यही अगर बॉन्ड अगर महंगा बेच रही है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए वो बॉन्ड, राइट? क्योंकि उसकी वैल्यू खाली 914 आ रही है। तो अगर इससे कम होगा या इतना होगा तो हम खरीदेंगे, अदरवाइज हम नहीं खरीदेंगे इसको। ये महंगा दे रहा है, इसका मतलब कंपनी महंगा दे रही है हमें। ठीक है? Yes, ma'am. Okay, now we'll move to the next question. Find the purchase price of rupees 1000 bond redeemable at the end of 10 years at 10% premium and paying annual interest at 4% if the yield rate is to be 5% per annum effective. Okay, so face value is 1000, redemption value is 10% premium, so this is basically 1000 into 1.1, 10% ज़्यादा है ना, so it is 1100. Okay, n is 10, then annual interest rate दे रही है 4% का, so हमारा interest कितना हुआ, which is annuity basically, interest हुआ हमारा face value that is 1000 into 4%, so it is 40. ठीक है, हर साल 10 years तक 40 rupees का इंटरेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट इज yield rate is to be 5% per annum effective, so this is basically for your PVF and PVAF formula, so this is 5%. ठीक है, नॉमिनल हम यूज करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, इफेक्टिव वी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यूज। ठीक है, so we have got all these amounts, now we have to calculate the value. So redemption value is 1100 into PVF of 5% for 10 years plus 40 is the interest annuity multiply by PVAF with 5% for 10 years. Okay, so this will be PVF में हम देखेंगे 5% for 10 years. 0.6139. Yes. This is our PVF value. Then the next one is PVAF में we'll see 7.721. yes 7.7217. So 984.16 approximately. So this is the price of the bond. Clear है सबको? Yes. ठीक है, साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहो आप लोग. Then the third question is a coupon bond has a rupees 1000 face value and provides an 8% semi-annual coupon for 15 years. The appropriate discount rate is 10% per annum. What is the value of the coupon bond? Okay.
So we have been given face value, which is 1000. Okay, redemption value is not given, so we are assuming it to be same, 1000. Then interest rate is semi-annual. Okay, so interest है annuity, वो हमें semi-annual मिलेगा और face value into 8%. semi-annual है तो कितना होगा semi-annual actual में 0.04. 8% is for the annual. This is for the entire year. वो कह रहा है 8% का बॉन्ड है बट सेमी एनुअल मिलेगा, तो इसका मतलब सेमी एनुअल में इट विल बी 4%. So this is the annuity interest. N is basically 15 into 2, right? साल में 2 बारी पेमेंट मिल रही है, so it is 15 into 2. जो आपका टेबल्स के लिए R है, that is effective interest rate 10% per annum. I have already told you that discount rate, effective interest rate, they mean the same thing only. Discount rate usually use होता है in order to calculate the present values, और future value के लिए compounding rate. ऐसे काफी बार ये terms आ जाते हैं, compounding rate, discount rate. So it means the same thing. ठीक है, so R is basically 5%. 10% per annum है, but we are calculating the semi-annual. Okay, now everything we have got, we just have to put this in the formula. So it is 1000 into PVF, which is 5% with 30 years, plus PVAF 5% for 30. Now we will simply go to our tables. So this is PVAF. Okay, so for PVAF 5% is the rate and 30 is the year. So this value is. So this is for PVAF. For PVF 5% for 30 years. So this one. So 846.28. This is the answer. Anyone having any doubt so far? No, ma'am. Now we'll move to the last question of this. So a bond has a rupees 1000 face value bond with a 30 years life. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of the zero coupon bond? So you know about zero coupon bond, right? क्या होते हैं zero coupon bonds? When you have no interest, right? जो भी difference होता है between the purchase price and the redemption price, वो जो difference होता है that is usually called as interest. कि जो भी difference होगा मतलब वो interest है, but there is no actual interest rate which is fixed. So there is no annuity as such. Usually the difference is considered as a interest, but कोई annuity payment नहीं होती. मतलब आज खरीदा 10 साल बाद जो value मिलेगी मिलेगी. During those 10 years you will not get anything. ठीक है, सो इसमें वो बेसिकली कह रहा है कि आप इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड की कि आज की डेट में क्या होगी. सो इस क्वेश्चन में हमें फेस वैल्यू गिवन है 1000 और रिडेम्पशन वैल्यू इज आल्सो सेम 1000. एन इज 30 इयर्स. एंड एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट मतलब हमारे टेबल्स के लिए
जो डिस्काउंट रेट है दैट इज 10%। मतलब हमें 1000 रुपीज मिलेगा 30 साल बाद, हमें आज की वैल्यू निकालनी है उसकी। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, this will be redemption value. Now this is only one payment. Okay, this is not annuity, so I'll be using PVF tables. PVF में 10% is the interest discount rate and N is the number of years. Okay, now we'll go to our tables. 10% for 30 years. We have to look for PVF tables. So these are the PVF tables. So it is 10% for 30 years. यही है। So you'll just simply substitute the value here. So 57.3. So this is the value of zero coupon bond. Anyone having any doubt? मैम इसमें हमने एनुइटी क्यों नहीं दिया? बेटा जीरो कूपन है ना, कूपन है जीरो, कोई कूपन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, हाँ ओके। देखो क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट ही नहीं लिखा, खाली डिस्काउंट रेट लिखा है। हर क्वेश्चन में दो इंटरेस्ट रेट लिखे हुए हैं, एक जो मिल रहा है कूपन की फॉर्म में और एक जिससे हम डिस्काउंट कर रहे हैं, दैट इज नॉमिनल एंड इफेक्टिव। इसमें नाम दिया हुआ है जीरो कूपन, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड, फाइंड आउट व्हाट should be the value of this bond after 5 years. ठीक है, हमें परचेज वैल्यू पता चल गया, उसका आज का प्राइस पता चल गया, बट मुझे अब क्या कैलकुलेट करना है कि 5 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। सो कैसे करेंगे हम इसकी वैल्यू ऐसे कैलकुलेट? एनीवन? कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैम प्रेजेंट वैल्यू की जगह फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला होगा। वेरी गुड। और प्राइस क्या होगा हमारा, किस प्राइस को लेके जाएंगे हम फ्यूचर तक? प्राइस तो सेम ही रहेगा ना। 57.3 राइट? यस मैम। यस, तो हम लोग 57.3 को लेकर जाएंगे। यहाँ मैंने गलत लगा दिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे FVIF लिख लो या शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। सो दिस इज बेसिकली अ वन पेमेंट विच वी आर टेकिंग टू द future. So there is only one payment, that is why we are using FVF. If it would have been an annuity, then we would be using FVAF tables. ठीक है, सो यहाँ पे 5 years है और हमें पता है डिस्काउंट रेट क्या है, 10% for 5. Now we will see the FVF tables. So these are your FVF tables. So for that 10% is the rate and year is 5. So it is 1.6105. So just substitute the value here. $92.28. So after 5 years, this will be the value. This will be the future value. ठीक है, सो हमेशा दिमाग में क्या रखना है कि हमें कौन सी वैल्यू को कहाँ लेके जाना है। अगर आज की डेट में तो प्रेजेंट, फ्यूचर में तो फ्यूचर वैल्यू, क्या वो एक पेमेंट है, क्या वो एन्युटी है। सो हमेशा इस तरीके से हर क्वेश्चन को एनालाइज करना है। मैम यस, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हम ऐसे भी कर सकते थे ना, जो 1000 फ्यूचर वैल्यू है उसको लेकर 25 इंस्टॉलमेंट्स पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले। कौन सा, मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा 25 प्रेजेंट वैल्यू,
यस मैम, एंड 25 लेकर। करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं एक बार ऐसे आएगा क्या। यहाँ पे आप कह रहे हो 25 कर दे, है ना। यस मैम। तो देखो 25 की क्या वैल्यू आ रही है, PVF। सो रेट इज 10%। ठीक है, ये रेट है आपका 25। हाँ, इट विल कम सेम। It's coming same. So it's your understanding. Basically, you are also right कि हम instead of now discounting it for 30 years, we can discount it for 25 years. Or you can also do it like that. Will not make a difference. यस मैम। Clear है सबको? This valuation of bonds and debentures. इन बॉन्ड की जगह कभी डिबेंचर्स आ सकते हैं, प्रीमियम की जगह काफी बार जैसे इस क्वेश्चन में था कि 10% प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 10% डिस्काउंट पे रिडीम हो रहे हो। तो उसमें आप 1000 इंटू 90% करके वैल्यू निकाल लोगे, रिडेम्पशन वैल्यू। क्लियर है? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? यस। नेक्स्ट वन इज सिंकिंग फंड। ओके, इट्स वेरी वेरी इजी। सिंकिंग फंड क्या होता है? बेसिकली व्हेन वी नो दैट वी विल इनकर सर्टेन काइंड ऑफ एन ऑब्लिगेशन इन द फ्यूचर, व्हेन वी आर सर्टेन, ठीक है, कि आफ्टर 5 years और आफ्टर 10 years वी हैव टू इनकर सम ऑब्लिगेशन। उस ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आज की डेट से यू हैव स्टार्टेड मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिससे मुझे उस पर्टिकुलर टाइम तक एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिल जाए, इसलिए मैं आज से इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस बेसिकली सिंकिंग फंड क्वेश्चंस में क्या है कि मुझे ये निकालना है कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे उस पर्टिकुलर डेट पे 5 years डाउन द लाइन और 10 years डाउन द लाइन उस पर्टिकुलर डेट पे मुझे वो पूरा अमाउंट चाहिए, जिससे मैं अपना इन्वेस्ट जो भी मुझे मेरी ऑब्लिगेशन है मैं उसको मीट कर दूं। जैसे बहुत बार ये होता है कि व्हेन यू नो दैट आफ्टर 10 years दिस पर्टिकुलर मशीन विल will stop functioning or probably we have to purchase a new machine, और उसकी कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल यू आर एस्टिमेटिंग एज टू बी 5 लाख रुपीज। तो आज की डेट में आपको कितना एनुइटी एनुइटी निकाल रहे हैं, मतलब सेम अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा कि हर साल या हर सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। सो ये बिल्कुल हम लोग ना ऐसा कंसेप्ट कर चुके हैं, बट सिंकिंग फंड एक सेपरेट कंसेप्ट है, इसलिए हम दोबारा से कर रहे हैं। अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी डन इट व्हेन वी वर डूइंग द क्वेश्चंस ऑन ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। बेसिकली उन क्वेश्चंस में हम लोग फ्यूचर वैल्यू के साथ साथ एन्युटी अमाउंट भी निकाल रहे थे, ठीक है। सो सेम वही सेम आपका फंड है। अब सिंकिंग फंड में ना प्रेजेंट वैल्यू नहीं यूज होगा, इसमें हर फॉर्मूला में यूज होगा फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर को डिटरमिन कर रहे हैं कि फ्यूचर में इतनी कॉस्ट होगी तो आज के डेट में मुझे कितनी एन्युटी निकालनी चाहिए। सो बेसिकली नाउ वी हैव टू यूज दीज FV टेबल्स, फ्यूचर वैल्यू टेबल्स, नॉट द प्रेजेंट वैल्यू। मैं किसी वैल्यू को आज की डेट में नहीं डिस्काउंट कर रही हूँ, मेरे पास फ्यूचर वैल्यू है और मैं एन्युटी कैलकुलेट कर रही हूँ। तो आपके टू टाइप्स ऑफ एन्युटी हमने सीखे थे। ऑर्डिनरी एन्युटी when the periodic amount is set aside at the end of the period. याद है डिफरेंस बिटवीन एन्युटी ड्यू एंड ऑर्डिनरी एन्युटी? ऑर्डिनरी एन्युटी में सारी पेमेंट्स होती है एट द एंड ऑफ द पीरियड और एन्युटी ड्यू में सारी पेमेंट्स होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है। और हम लोगों ने ये फॉर्मूलाज हम कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हम जो हमारी एन्युटी पेमेंट होती है, दिस R इज बेसिकली द एन्युटी पेमेंट। एन्युटी पेमेंट को हम, हमारा जो टेबल यूज होता है वो एन्युटी फैक्टर टेबल यूज होता है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल, उससे मल्टीप्लाई करते हैं और हम अपनी फ्यूचर वैल्यू निकाल देते हैं। सिमिलरली अगर हमें एन्युटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे उस टेबल की वैल्यू से, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हर इंटरवल में हमें कितनी पेमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। Similarly, for annuity due, we have done this formula.
दैट फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू एन्युटी ड्यू इनटू जो भी आपकी फ्यूचर वैल्यू टेबल से जो वैल्यू आएगी उसमें आप उस वैल्यू को -1 कर दो, ठीक है। और फिर आप, ये सिंपल है, फिर आपको जब एन्युटी कैलकुलेट करनी है तो आप फ्यूचर वैल्यू को इस पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, जब हमने एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी किया था। सो इस क्वेश्चन में सिंकिंग फंड में बेसिकली हमारा पर्पस है टू कैलकुलेट द the regular payments which we have to make, that is we have to calculate the annuity payments. So for that we will use this formula. और हमने जब ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू किया था हमने ज्यादा ये फॉर्मूला यूज किया था ऊपर वाला, हालांकि हमने एन्युटी पेमेंट्स भी निकाली थी बट हमने ज्यादा ये यूज किया था। अब हम इसका डिफरेंट यूज कर रहे हैं, बस कि आर यहाँ चला गया, एस यहाँ चला गया, ठीक है। लेट्स डू वन क्वेश्चन, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो a sinking fund is created for redemption of bonds of rupees 1 lakh. Now think about from the company's point of view. ठीक है, कंपनी ने कुछ बॉन्ड्स निकाले थे और उसको पता है कि इन बॉन्ड्स को 25 इयर्स बाद इसको 1 लाख रुपीस चाहिए होंगे उस टाइम पे, क्योंकि उनको रिडीम करने हैं, जो भी बॉन्ड होल्डर्स है उनको वो पे करना है, ठीक है। सो हाउ मच मनी should be provided out of the profits of each year for the sinking fund if the investment can earn interest at the rate of 4% per annum. Okay, so it's very simple. Okay, we know the redemption value, so we know the future value. Okay, this is basically the future value, or you can also say as sum. Okay, नो दैट 25 इयर्स बाद हमें 1 लाख रुपए चाहिए, ये फ्यूचर में चाहिए, तो ये फ्यूचर वैल्यू है हमारी, आज की वैल्यू नहीं है ये। एन है हमारा 25, हमारा इंटरेस्ट रेट है 4%, तो मेरा फॉर्मूला क्या कहेगा, आर इज इक्वल्स टू एस डिवाइड बाय PVAF। यहाँ पे अब एन्युटी की बात हो रही है, इस सॉरी FVAF, यहाँ पे एन्युटी की बात हो रही है, इसलिए अब हम एन्युटी टेबल्स यूज करेंगे, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी टेबल्स। इसमें इंटरेस्ट हो गया 4% और एन हो गया 25। सो एस इज 1 लाख, दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू, डिवाइड बाय, अब देखो FVAF 4% 25, दिस इज 4% और इसका 25, दिस, ठीक है, एंटर। सो 2401.2 अप्रोक्सीमेटली हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर साल, जिससे 25 साल बाद हमें 1 लाख रुपीस मिल जाए। और हमें पता है वो 1 लाख रुपीस हमें अपने डिबेंचर होल्डर्स या बॉन्ड होल्डर्स को रिडीम करने के लिए चाहिए, मतलब वी आर सर्टेन कि हमें चाहिए ही चाहिए ये पैसा। सो हमने इसकी कैलकुलेट कर ली एन्युटी। Is this clear? Yes. Okay. Now we'll come to the next question. A machine cost a company rupees 52,000 and its effective life is estimated to be 12 years. A sinking fund is created for replacing the machinery by a new model at the end of its lifetime, when its scrap value is 5,000 only. The price of new model is estimated to be 25% higher than the price of the present one. Find what amount should be set aside at the end of each year out of the profits for the sinking fund if it accumulates at 10% effective. So presently we have a machine. Okay, this machine is costing 52,000 and we know with certainty that it will run for approximately 12 years.
But now the problem is that the company knows that after 12 years they have to purchase a new model. They have to replace this machinery. और जो वो न्यू मॉडल चाहिए उन्हें उन्हें पता है वो न्यू मॉडल 25% हायर होगा इसकी वैल्यू से. ठीक है. सो अभी सबसे पहले हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे कि हमें 12 साल बाद एक्चुअल में कितना अमाउंट चाहिए. ठीक है. सो कितना अमाउंट चाहिए. जो प्राइस है 52,000 जो हमारी ओल्ड मशीन है उसके प्राइस से 25% हायर है. सो दिस इज बेसिकली 52,000 into 1.25, right? Yes, ma'am. 55,000 की वो मशीन कॉस्ट होगी. बट उस पर्टिकुलर डेट पे मेरी जो ओल्ड मशीन है उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी. 5,000. ये भी तो मुझे पैसा मिलेगा ना. अगर मुझे खरीदना है उस टाइम जब मैं खरीदूंगी 12 साल बाद, सबसे पहले मैं अपनी पुरानी मशीनरी को बेच दूंगी और वो मुझे पता है कि वो जब बिकेगी तो वो कम से कम 5,000 वैल्यू में बिकेगी, 5,000 रुपीज में बिकेगी. सो मतलब उस टाइम पे मैं इस कॉस्ट में से 5,000 सब्ट्रैक्ट कर दूं. Yes, ma'am. क्योंकि फ्यूचर में 5,000 रुपए और कम चाहिए होंगे क्योंकि मुझे पता है मेरी पुरानी वाली बिकेगी. ठीक है. अब मुझे मेरी फ्यूचर वैल्यू विद सर्टेनिटी आई नो कि मुझे 12 इयर्स के बाद आई रिक्वायर 60,000 रुपीज इन ऑर्डर टू परचेज अ न्यू मशीनरी. एन क्या है मेरा 12 इयर्स, राइट. और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%. 10%. Now it's very easy. I have to calculate what? The annuity payment. So annuity ka I know this will be future value divided by FVAF tables with 10% interest rate and 12 years. So quickly tell me the value of this FVAF. क्या वैल्यू है इसकी. बुक में टेबल नहीं है मैम. नहीं है बुक में. 10% वाली नहीं. Okay, just a minute. So this is FVAF. So this is the table for 10 years. This 10 for 12, 10% for 12 years. So this is the value 21.384. This will be 60,000 divided by 21.384. So you will require 2,806 rupees approximately annuity investment in order to accumulate 60,000 rupees at the end of 12 years. Is this clear? Yes. एक क्वेश्चन और करते हैं. इसमें अभी 5 क्वेश्चन है. देखते हैं अगर ये हो जाए तो फिर ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा. Now understand. Mr. A plans to send his son to UK for higher education 10 years hence. He anticipates the cost at that time will be rupees 10 lakhs. How much should have in the beginning of each year to accumulate this amount at the end of 10 years if rate of interest is 12% per annum effective. So we know the future value with certainty that it is, that it is 10 lakhs. I know N, that is 10 years. I know R, it is 12%. ठीक है. ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. एक जो डिफरेंस है बस वो यही है कि now the payments which he have to invest, it should be in the beginning of each year. It means it is falling under annuity due. So annuity due का फॉर्मूला क्या होता है. उसका फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू 10 lakhs डिवाइड बाय FVAF. I think it's under bracket FVAF 12% for 10 years -1. ये फॉर्मूला में एनविटी ड्यू के कि जो भी आपकी फैक्टर एंड वैल्यू एनविटी फैक्टर की जो
फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर की जो भी वैल्यू आएगी उसमें से आपको 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सो नाउ सी 12% फॉर 10 years, 17.5. 17.549. Okay, so this is 17.549 -1. -1 करना मत भूलना because this is at the beginning now. ठीक है, एंटर। तो 6042 पॉइंट, अब अलग क्यों आ रही है? फॉर्मूला तो सही लगाया ना हमने, it's -1 only. 10 years for 12%. और 17.549, so this is basically, एक सेकंड चेक करने देना मुझे, क्यों गलत आ रहा है ये आंसर। सॉरी, कुछ आई थिंक फॉर्मूला मैंने गलत किया है मैम, आई थिंक फॉर्मूले में। सॉरी, ये n+1 है, आई एम रियली सॉरी, द फॉर्मूला इज n+1, ठीक है, हमने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया। सो यहाँ पे बेसिकली इंस्टेड ऑफ 10 इट विल बी 11, क्योंकि एक साल बढ़ जाता है ना हमारा, क्योंकि हम बिगनिंग में कर रहे हैं तो हमारा एक साल बढ़ जाता है, तो इसलिए ये n+1 हो जाएगा और उसके बाद -1 होता है। दिस इज द फॉर्मूला। सो 11 years का देखो 12%, so it is 20.655. so now just to replace the value here, अभी भी नहीं मैच कर रहा। इन आई हैव टू चेक दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में क्या गड़बड़ है, क्योंकि बुक में ना -1 नहीं करा हुआ, और मेरे ख्याल से तो हमने -1 किया था एन्युटी ड्यू में। फ्यूचर वैल्यू का कहाँ है इसमें? हाँ, हमने तो किया है इसमें n+1 -1। मेरा चेक करना, शायद या तो बुक में गड़बड़ है, क्योंकि -1 तो था फॉर्मूला में, हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, और अभी मैं जब इस बुक में देख रही हूँ, दिस इज अ डिफरेंट बुक, इसमें दे हैव नॉट डन माइनस। एक बार ही करके देख लेते हैं, पहले तो इसको 10 लाख कर देती हूँ मैं। सो अराउंड 50,000 आंसर आ रहा है। मैम 1000 तो हो गया। सॉरी, क्या बोल रहे हो? ये वैल्यू 1 लाख है 10 लाख है? 10 लाख से 10 लाख से मैंने कर दिया, ठीक है, हाँ, इट्स 10 लाख। अभी 1 लाख किया ना, 10 लाख मैंने नीचे कर दिया था, 10 लाख। एक बारी बेटा इसको कंफर्म करूंगी मैं, क्योंकि बुक में नहीं किया है इन्होंने, इस वाली बुक में, और एन्युटी ड्यू में जितना मुझे याद है फॉर्मूला वाज दिस ओनली, ठीक है ना। आई विल कंफर्म यू ऑन दिस। तो मैं एक बारी रुको, मुझे 2 मिनट दो, मैं इस बुक में देखती हूँ कि इन लोगों ने एन्युटी ड्यू कैसे किया है।
हाँ, इन लोगों ने -1 ही किया है। इस ये क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। आंसर शुड बी 50,877। -1 होता है एज पर एन्युटी ड्यू फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन द आंसर इज रॉन्ग। इस बुक में गड़बड़ होगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a machine bought for rupees 80,000 is depreciated at the rate of 10% per annum on WDV basis for 8 years. To make up the loss due to depreciation, a sinking fund is created by setting aside a sum of money every year. What is the value of each payment if the accumulated amount in the fund is equal to the total depreciation if the interest is 5% per annum compounded annually? So क्या कह रहा है कि जो depreciation हो रहा है हर साल, उसके लिए हमें एक सिंकिंग फंड बनाना पड़ेगा जिससे जो भी डेप्रिसिएशन का लॉस आ रहा है वो हमारा पूरा होता जाए। सो इसका मतलब बेसिकली फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, बाद ही हमें पता चलेगी फ्यूचर वैल्यू क्या है सिंकिंग फंड की एन्युटी निकालने के लिए। ठीक है, सो फॉर 8 years, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 7 8। Okay, so first year 10% of this is 8,000. उसके बाद it will be 0.9। इससे ना आपका कैलकुलेट हो जाना चाहिए। एक सेकेंड। सबसे पहले पे हमने 10% लगाई, उसके बाद हर साल हमने इसी अमाउंट पे 90% लगाया। ठीक है, इसमें स्क्रैप वैल्यू भी है क्या? कितना लगा है हमारा टोटल डेप्रिसिएशन? देखना इसकी कैलकुलेशन ठीक है। फर्स्ट ईयर में 8,000 लगा, फिर 7,200 लगा, उसके बाद 80,000 में से -8,000 -7,200 और इसका, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन इज फाइन। ठीक है, WDV बेसिस। यूजुअली एक्सेल में ऐसा ही होता है कि पहले पे पूरा लगाने के बाद उसके बाद जो वैल्यू बचती है ना, उस जो डेप्रिसिएशन रेट होता है उसको 100 से माइनस करके जो रेट बनता है उसको सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो उससे, ऊपर वाली वैल्यूज को। ठीक है, सो द टोटल डेप्रिसिएशन इज टोटल नहीं निकालेंगे हम, एक सेकेंड, हमें फ्यूचर वैल्यू करना है ना, तो इसको हमें 8 साल आगे लेकर जाना है। इसको हमें 9, इसको 7 years, इसको 6 years, क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं हर डेप्रिसिएशन की। ठीक है, सो इसको हमें 8 years तक आगे लेके जाना है। इसको हमें 7, इसको 6, इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। ठीक है, सो दिस इज तो बेसिकली फ्यूचर वैल्यू ओनली, बट इन सबको भी हमें फ्यूचर वैल्यू के इक्वेट करना है। ठीक है, सो इसके लिए हम सारी, देखो हमारी एक ही पेमेंट है, सो हम FVF टेबल्स यूज करेंगे। ठीक है, वी विल यूज दिस FVF टेबल। और हमारा वो क्या है, 10% is the depreciation, okay? 5% compounded annually, so rate of interest is 5%। ठीक है, सो 5% है, सो सबसे पहले 8 years का, then it is this, and this is for 6 years। So it's 1.27।
सेकेंड, मैंने सही किया ना ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले को मुझे 8 साल आगे लेके जाना है, इस वाले को 7 years, 4 years, दिस इज एक सेकेंड रुको, ये तो 1 से होगा। 7 year वाले को मुझे सिर्फ 1 साल आगे लेके जाना है, 6 वाले को मुझे 2 साल आगे लेके जाना है, मुझे ना कंफ्यूजन हो रही है, एक सेकेंड। 3 years वाले को, 5 साल वाले को 3 years, 4 को 4, 3 को 5, हाँ 7 year का होगा ना। ठीक है, नाउ वील मल्टीप्लाई दिस विद दिस, सारी वैल्यूज को हम उनके FVF टेबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड देन वील कैलकुलेट द सम, जो में हमारी फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, सो टोटल फ्यूचर वैल्यू ये पड़ेगी हमारे डेप्रिसिएशन की। हर साल पहले हमने अपना डेप्रिसिएशन निकाला और फिर उस डेप्रिसिएशन की हमने क्या निकाली, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, जैसे हमारी फ्यूचर वैल्यू आ गई, अब उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, एन्युटी। बिगनिंग नहीं है ये, एट द एंड वाला ही है, सो उसमें दिस इज आवर फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय FVAF for 8 years with 5% interest। देखो FVAF 5% for 8 years is this। सो हर साल आपको 5847.603 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और ये भी मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, पता नहीं मैंने कैसे किया। इन्होंने ना एक्चुअल में डेप्रिसिएशन की फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाली, इन्होंने डेप्रिसिएशन को बस वैसे अमाउंट रख के निकाला है। They have calculated, ऐसे थोड़ी करते हैं, इन्होंने डेप्रिसिएशन को नॉर्मल रखा है। आई थिंक 45562 को इन्होंने एज इट इज रख के इसी को डिवाइड किया है, इन्होंने ना इनको फ्यूचर में नहीं किया, बट होना चाहिए ना फ्यूचर में, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आज की डेट में इतनी है, बट 8 साल बाद तो ये बढ़ जाएगी ना इसकी वैल्यू। मेरे अकॉर्डिंगली द आंसर शुड बी दिस, कि डेप्रिसिएशन निकाल के पहले हमने उनकी सारी फ्यूचर वैल्यू निकाली है, उसके बाद वी हैव कैलकुलेटेड द एन्युटी। बट बुक में ना, आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट आल्सो, बुक में उन्होंने खाली डेप्रिसिएशन का वो लिया, इसकी कॉस्ट खाली ये लिया है और इसको डिवाइड किया इस पर्टिकुलर से, दैट इज 9, ये वैल्यू क्या है हमारी 9.5491 ना, हाँ ऐसे किया, बट दिस इज द करेक्ट वन आई गेस। आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है दिस इज नॉट द फ्यूचर वैल्यू, उसकी वैल्यू 8 साल बाद इज डिफरेंट, क्योंकि हमेशा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट चलता है। ठीक है, आई चेक जेके टुकरॉल आल्सो, उसमें किस तरीके से सॉल्व है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंगली दिस शुड बी द आंसर। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो मैम। मेरे अकॉर्डिंगली सही लग रहा है ना ये आया भी हुआ है आपके 2018 में क्वेश्चन, बट इन्होंने ऐसे क्यों किया है कि डेप्रिसिएशन सेम रखा है।
चलो मैं अगर कुछ होगा तो आई टेल यू इन नेक्स्ट क्लास। अगर कुछ जेके ठुकराल सर की बुक में भी सेम है तो इसका मतलब फिर डेप्रिसिएशन के साथ मत करना आप लोग। बट मुझे नहीं लॉजिक समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों करा रहे हैं वो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। हाँ अरे फोर्थ क्वेश्चन था ना, सॉरी। ये फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ ही था ना ये क्वेश्चन। हाँ फोर्थ क्वेश्चन था। एक बारी मैं ये पढ़ लेती हूँ, अगर ये मुझे सही सा लगा तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना इसका, ठीक है। अगर इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है तो। अ मशीन बॉट फॉर रुपीज 2,70,000 its effective life is 8 years. The salvage value is 15,000 at the end of its life. It is decided to create a sinking fund to replace this machine at the end of its effective life by making half yearly payments that will earn an interest of 6% per annum, compound half yearly. If it is known that the cost of machine increases by 3% per annum, calculate the amount of each payment to the sinking fund. Try this question. This is your homework. Although it's it's on the same line, but just practice it. If you'll not be able to solve it, then tomorrow I'll show you the solution. Okay, just do a practice of this question number 5th. इसमें क्या है, एक तो आपका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है फ्रॉम एनुअल टू हाफ ईयरली। सो हर चीज आपकी ये 16 हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट आपका 3% हो जाएगा। ये जो है ये न्यू मशीन का बता रहा है कि हर जो ये न्यू मशीन है वो हर साल 3% पर एनम से जो कॉस्ट है उसकी मशीन की वो इंक्रीज होती चली जाएगी। जो इस मशीन है इस मशीन के कंपैरिजन में, ठीक है, 2,70,000 के कंपैरिजन में। सो ये 3 साल तक मतलब 3% पर एनम हर साल बढ़ रही है, तो 8 इयर्स तक वो कितनी बढ़ जाएगी। सो आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.03 रेज टू पावर 8, जिससे आपको फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद जब आप टेबल्स यूज करोगे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी टेबल्स, वहां पे हर चीज डबल हो जाएगी। दिस 8 will become 16, this will become 3%. So just practice. Although I have discussed this in how to proceed, but you can practice, and if it is you are still not able to find, you are not able to match the answer, then we'll solve again it tomorrow.